Good morning everyone. I welcome you back in the e-learning program organized by Sri Vidyadesh Vidya Sankul, inspired by Dr. G.M. Sutaria sir. Today I'll not welcome you in the class of statistics, but I'll welcome you in the class of CC and SP. So you must be wondering that what is this subject about, alright? So this is the subject you have never learnt it before. Although this subject was part of your syllabus, but this time it is being separated. So this is the new subject which I am going to introduce today in the class of 11th, alright? So this subject is CC and SP. Basically this subject is divided into two parts. First is CC, that is commercial correspondence, and second one is SP, that is secretarial practice. Now what these subjects are all about. So today basically I'm here to introduce you this subject. I'll give you introduction of what this subject covers. So first of all, what does these subjects, these short forms, abbreviations are trying to tell you? So first is the first part is CC, which says commercial correspondence, alright? Commercial correspondence, right? Alright, so basically this is the first part, and then second part is secretarial practice. Alright, so what is commercial correspondence, what is secretarial practice, that we are going to learn today, okay? So basically this subject is divided into two parts. The first part says the commercial correspondence, and the second part says about the secretarial practice. Both looks very different, but both are united with each other, okay? This commercial correspondence is carrying the weightage of 40 marks, and this secretarial practice carries a weightage of 60 marks. So 40 marks ka commercial and correspondence, and 60 marks will be of secretarial practice. Now let us learn. Each and every word here has its own meaning, okay? So first पहले हम लोग किसके बारे में समझ लेते हैं. First we'll understand about the first part which carries 40 marks of your syllabus, okay? So commercial correspondence क्या होता है? First of all, what is commercial, what is correspondence? Correspondence has a very simple meaning. When we communicate through the letters, okay, when we communicate with somebody in the form of letters, okay, now letters could be of two types, okay, when we are communicating with each other in the form of letter. मुझे किसी को बताना है, right? I want to pass the information from me to somebody else. So I'll be, suppose I'm communicating through the way of letter writing, so that is called correspondence. Now letters आते हैं उसमें correspondence में. Now letters could be of two types, formal and informal, okay? Now what is that, ma'am? When it is informal, हम लोग उल्टे से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले informal देखते हैं. When it is informal, in your previous standard 8, 9, even from 5th standard, right, I would say कि हम लोग पहले से ना लेटर राइटिंग तो आता ही है इंग्लिश में, है ना. नाउ दिस सब्जेक्ट इज समथिंग विच यूनाइट्स ऑल द सब्जेक्ट्स, ओके? इस सब्जेक्ट में यू विल लर्न अबाउट द अकाउंटिंग, ओके, नॉट एग्जैक्टली द सम्स, बट कुछ अकाउंटिंग के टर्म्स आएंगे, okay? These subjects will carry certain statistics, कुछ डेटा भी आएंगे. In this subject you will see the communication, okay, जो बिजनेस कम्युनिकेशन रिलेटेड भी आएगा इसमें. इस सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स रिलेटेड भी बातें करेंगे. सो ऑल टुगेदर दिस सब्जेक्ट कंबाइंस ऑल द सब्जेक्ट्स, एंड
by choosing this subject you can choose your career option also, that also I'll let you know, okay, कि ये एक सब्जेक्ट के बेस पे तुम अपना खुद का आगे का पूरा करियर कैसे बना सकते हो, that also I'm going to tell you today, okay. So letters could be of two types, one is formal, another is informal. All right, now what is formal and informal? Informal में, as I told you, from your 10th standard, from your 5th standard I would say, you are learning the letters, ठीक है, कि write a letter to your friend inviting for birthday parties, है ना, बचपन में ऐसे हमने letters start किए थे. फिर when you grow up, high school में आते हो तब you are being asked कि write a letter to your parents, to your brother or your siblings or cousins or somebody. So ये सारे जो letters तुम लोगों ने सीखे हैं, these letters are informal, ठीक है, यहाँ पे कोई तुम्हारा business relation नहीं है, right? Here you are, you are a friend of somebody, you are a beloved person of somebody, okay? This is something your personal, ठीक है. ये जो लेटर्स लिखते हो दैट इज समथिंग ऑफ पर्सनल, हमारी पर्सनल फीलिंग्स हम किसी को लिखते हैं, पर्सनल चीज़ें वी आर कम्युनिकेटिंग, पर्सनल रिलेशनशिप्स है, राइट, विद योर फैमिली, विद योर सिबलिंग्स, विद योर कजन्स एंड विद अदर योर फ्रेंड्स, ओके. सो दीज ऑल आर द पर्सनल रिलेशनशिप्स, ठीक है, ये सारे जो रिलेशंस है वो पर्सनल है. सो दैट इज कॉल्ड द इनफॉर्मल लेटर्स, ओके. सो दैट इज द करस्पॉन्डिंग थ्रू द इनफॉर्मल वे, ठीक है. तो ये हमने 10th तक इनफॉर्मल सीखा. अभी जैसे 11th में आ गए हो, नाउ यू आर प्रिटी ग्रोन अप चिल्ड्रन, राइट. सो अभी हम लोग को ऐसे देखना है कि हाँ, नाउ इफ़ यू आर डूइंग सर्टन बिजनेस और you are into like formal relation of that person, ठीक है, जैसे या तो कहीं और ऑर्गेनाइजेशन के साथ तुम बात कर रहे हो या any organization among each other are want to communicate, then they will use the formal letters, okay. Now अभी अपने डे टू डे लाइफ में अपने कहाँ फॉर्मल लेटर्स लिखेंगे? सो अपने लिए when you all must be having a bank account, ठीक है. अभी तुम्हारा कहीं पे चेक बुक खो गया है, राइट, या फिर एनीथिंग लाइक कोई प्रॉब्लम आ गई है तुम्हारे बैंक अकाउंट में, यू वांट टू चेंज द एड्रेस ऑफ योर बैंक अकाउंट में जो एड्रेस देते हैं अगर वो चेंज करवानी है, और एल्स देयर आर thousands of work we have towards the bank, okay. So bank is an organization, उसके साथ हमारा personal कोई relation नहीं है, right. It is totally a formal relation, all right. they are not any relatives of ours, okay, कि हम लोग dear ma'am dear sir करेंगे. हम लोग के साथ they have a very formal relation, एक customer एंड एक सर्विस प्रोवाइडर का रिलेशन है, ओके. सो दे डोंट हैव एनी पर्सनल रिलेशनशिप विथ यू. सो व्हाट दे विल चूज, सो व्हाट वी विल चूज, आई मीन वी विल चूज फॉर्मल लेटर्स, ओके. तो फॉर्मली जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं दैट विल फॉल पार्ट ऑफ दिस फॉर्मल कम्युनिकेशन, ओके. जिससे कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात करना चाहता है तो दे विल कम्युनिकेट इन अ फॉर्मल लेटर्स में, ठीक है. सो ऐसे टाइप के लेटर्स आएंगे, ओके. या किसी चीज़ की इंक्वायरीज़ हम लोग करवाते हैं जब बिज़नेस करते हैं तो, राइट. देन कोई चीज़ की कंप्लेन करते हैं, स्पेशली इन द इंश्योरेंस कंपनीज जैसे होती है, उसमें तुम लोग को कुछ इंश्योरेंस करवाया है तो उसके रिलेटेड तुमको अभी कोई क्लेम लेना है, ऑब्वियसली कि हम लोग क्लेम तो लेंगे ना अगर होगा तो एट दैट टाइम वी नीड टू राइट द लेटर्स. सो दैट इज़ कॉल्ड द formal letters. So you understood what are the letters, ठीक है. This is the correspondence. Commercial, when it comes to commercial, which means something which is related to business, something which is related to profit, something which is related to an organization, okay. There's no personal relation, this will fall part of formal letters, ठीक है. So commercial correspondence means when suppose if I am having my business, ठीक है. तो अभी डेफिनेटली मेरा बिजनेस ऐसा है कि मुझे बहुत एक्सपांडेड बिजनेस है, तो मुझे किसी मैं किसी और पार्टी के साथ किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब मैं डील करती हूँ तो आई विल डेफिनेटली टेक द इंक्वायरीज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. और अगर मुझे उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट भी करना है तो मैं पहले उसकी इंक्वायरी लूँगी, पहले उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस करूँगी. येस, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड these kind of we can say conditions, then only we are going to
do the communication or do the further business relationships. So for that we need to do the communication in the writing form, क्योंकि एक राइटिंग फॉर्म का ये भी बेनिफिट होता है दैट वॉट एवर इज़ रिटन दैट यू कैन रीड. ठीक है, अगर मैंने कॉल पे बोल दिया कि हाँ चलो कि 5% कमीशन मैं ले रही हूँ, ओके, अपनी डील फाइनल, अभी नेक्स्ट डे पे तो मैं कॉल कर देती हूँ कि नहीं मैंने तो 10% बोला था, तो कहाँ है उसका प्रूफ. हालांकि अभी तुम लोग तो एक्सपर्ट हो तो बोलोगे मैम रिकॉर्डिंग कर लिया होगा ना, पर सब लोग तो नहीं कर सकते, ज़रूरी नहीं है. ओके, सो इट इज़ पॉसिबल दैट ओरल कम्युनिकेशन, या हम फेस टू फेस मिले हैं, ऑलराइट, और मैंने 5% बोला, वो बोलता है नहीं मैंने तो 10 बोला था. सो दिस काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैन बी अराइज्ड. So to avoid those misunderstanding, we prefer to go for writing, okay, and writing forms in the commercial correspondence. Okay, so basically in this first part, ये first part is like whole of letters जो तुम लोगों ने इंग्लिश में ऑलरेडी चल ही रहे हैं, सर करवा रहे हैं तुम लोग को. So different letters you are learning it anyways, and here you will learn the formal letters, that how would you communicate with the other organizations. Okay, so basically there are going to be 8 chapters. Okay, and in these chapters सब आ जाएगा introduction से लेके that what and how the communication is being taken place, then bank inquiries, business के letters कैसे लिखते हैं, and then among the organization also if you start working ना, अगर जब जॉब करना स्टार्ट कर दोगे तो देखा भी होगा शायद जिसके पेरेंट्स मस्ट बी वर्किंग, सो दे मस्ट बी नोइंग दैट अगर जैसे उनको लीव भी चाहिए होते कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो दे गिव द एप्लीकेशन फॉर दैट. ओके, सो दैट इज वन ऑफ द फॉर्मल लेटर व्हेन दे वांट टू कम्युनिकेट इवन अमंग देमसेल्व्स. ओके, अमंग द स्टाफ मेंबर्स ऑल्सो, जब कंपनीज बहुत बड़ी होती है, ओके, तो व्हेन दे वांट टू इवन कम्युनिकेट थ्रू द कम्युनिकेट अमंग द स्टाफ, at that time also they will prefer to go for formal letters. Okay, they will prefer to go for letter writing. Okay, nowadays these letters have been turned up into ईमेल राइटिंग. ठीक है, अभी तो क्या करते हैं ईमेल राइटिंग करते हैं, बट ईमेल में भी जो कंटेंट होता है, जो फॉर्मेट्स होते हैं दैट आर समहाउ सेम. ओके, सो दिस इज़ हाउ द कमर्शियल करस्पॉन्डेंसेस, इसमें सब कुछ आ जाने वाला है, ब्रिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, देन उसमें कैसा एनवलप होना चाहिए, कैसा उसका लेआउट होना चाहिए, हाउ द लेटर शुड लुक, हाउ इट शुड बी प्रिसाइज होना चाहिए, एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरीथिंग विल बी covered. Okay, so this was about 40% of the syllabus that is being covered in the first part. Now come to secretarial practice. Okay, this is the part by which, as I told you, you can build your career also. So ये दो चीज़ें हैं, secretarial word है, practice word है. अभी क्या है ये वर्ड्स, दीज वर्ड्स, जब भी सेक्रेटरी में मैंने सुना है, जब भी कोई बात करता है ना, दे फील दैट पर्सनल सेक्रेटरी. ठीक है, पर्सनल मेरा असिस्टेंट है, दिस इज़ माई पर्सनल सेक्रेटरी. इट्स विद द एटीट्यूड दे से ये तो मेरा पर्सनल सेक्रेटरी है. दिस इज़ नॉट लाइक दैट एक्चुअली, ऑल्दो दे आर पार्ट ऑफ पर्सनल सेक्रेटरीज, दीज आर द रोल्स, बट दिस वर्ड हैज़ अ वेरी वास्ट मीनिंग. सो लेट्स अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो वर्ड है, दिस इज़ नॉट यूज्ड सिंस नाउ, अभी से ये वर्ड्स नहीं है. दिस वर्ड इज़ वेरी ओल्ड. ठीक है, बहुत पुराना है ये वर्ड. इवन द राजा महाराजास, द किंग्स यूज टू हैव दिस वर्ड, ये वर्ड यूज होते थे. यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट द कंट्रीज प्रीवियसली वर बीइंग रूल्ड बाय द किंग्स. ठीक है, इंडिया में पहले किंग्स कंट्रीज़ को चलाते थे, उनका एरियाज़ होता था, देयर यूज टू बी अ किंग, वो रूल करता था पूरी उसका जो भी किंगडम होता था. ओके, वेदर इट्स अ स्टेट, ओके, जितना भी उसका एरिया है, दे यूज टू बी टुक इनटू द कंट्रोल. अभी एज आई टोल्ड यू दैट द वन पर्सन कैन नॉट हैंडल एवरीथिंग. ठीक है, अगर जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तो यू विल सी उतना बड़ा उसका स्टाफ होता है, बिकॉज दे विल नीड पीपल. ओके, एंड जो काम ह्यूमन बीइंग कर सकता है, दैट मशीनरीज, ऑल्दो मशीनरीज हैव सब्स्टिट्यूटेड ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, बट
द ह्यूमन बींग्स एक्चुअली प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, तो अगर मैं वैसे बोलूँ कि हाँ चलो मैं पूरे अपने किंग बोलता है कि नहीं मैं पूरी कंट्री को संभाल लूँगा विद द मशीनरी, सो वो नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि वो मशीनरी ऑपरेट करने के लिए भी तो ह्यूमन बीइंग चाहिए, उसका सर्विसेज करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए भी वी नीड ह्यूमन बीइंग. ओके, सो एट दैट टाइम ऑल्सो, ओके, उस टाइम पे भी दीज किंग्स यूज टू अपॉइंट अ पर्सन, कुछ लोगों को वो अपॉइंट करते थे एंड दे आर कॉल्ड द सेक्रेटरीज. ओके, तो उस टाइम पे उनको सेक्रेटरी करके नहीं बुलाते थे, उस टाइम पे दे यूज टू हैव डिफरेंट वर्ड्स. ओके, मंत्रीज वो बोलते थे, ठीक है. देन इफ आई टॉक अबाउट द मुगल एम्पायरशिप, ओके, दे यूज टू कॉल देम वजीर. ओके, सो दीज आर द फेमस वर्ड्स दे यूज टू हैव. मंत्रीज जैसे बोलते हैं ना. ना अभी ये सेक्रेटरीज का रोल क्या होता है? सी, वी आर स्पेशली टॉकिंग अबाउट अ कंपनी. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. ओके, कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है. ओके, सो उसको मैनेज करने के लिए कोई नेचुरल ह्यूमन बीइंग तो चाहिए ना. सो दीज आर द सेक्रेटरियल. Secretary is the person who takes care of the company, the rules and regulations of the company. Okay, whatever things are needed, the one who keeps the secrets of the company, I would say, जो company के पूरे secrets को बचा के रखता है, that person is the secretary. Now you might have heard the word CS, company secretary. So this subject is actually a little not 0.01% वाला पार्ट हम बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा सा पार्ट है which give you the introduction of CS. Okay, company secretary क्या होता है, right? What is the role of that secretary? What are the functions of that secretary? What is the thing that he needs to understand, he needs to develop in himself. Okay, so practice. सो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस करनी है, विच मीन्स कि जो भी लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन जो उसका रोल है उसकी वी नीड टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. ओके, दिस पार्ट बेसिकली इज ऑफ 60 मार्क्स. ओके, here you will see the different types of secretary. then secretary के टाइप सीख के उसके बाद जो मेन हमारा मोटिव है इस चैप्टर का, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी. तो वो क्या रोल करता है, उसके क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, राइट? तो वो सारी चीज़ें, उसके क्या एडवांटेजेस है उसके रखने के, उसके नहीं रखने के. ओके, सो बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी की भी पूरी इसमें डिटेल यू विल गेट टू लर्न. देन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज. कंपनी अभी है ना, हम लोग बहुत ऐसे रैंडमली वर्ड यूज़ करते हैं कि ये ऐसी कंपनी है, ये तो कंपनी आती, ये तो कंपनी उठी गई, ऐसे ऐसे वर्ड्स हम लोग बहुत इजीली यूज़ कर लेते हैं. कंपनी, ठीक है. सो बेसिकली हाउ दिस company will be formed, that we are going to learn in this chapter. ओके, कि कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, इनकॉर्पोरेट हम लोग उसको कैसे करते हैं, अगर इनकॉर्पोरेट भी कर ली तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है. क्योंकि हर एक कंपनी का कुछ विजन होता है, कुछ मिशन होते हैं, तो वो उसको अचीव करने हैं कि क्या वो चाहती क्या है कंपनी के, उसकी क्या एक्सप्लोर करना चाहती है. ओके, जैसे कोई एक कंपनी ले लेते हैं, सपोज टूथपेस्ट कंपनी है, तो उसका एक्सप्लोरेशन है कि अभी मैं टूथपेस्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, बट for the future purpose my plan is to I'll go for tongue cleaners, I'll make brushes, and I'll make other tooth related tools for dentist or for the general users. ओके, सो ये उसके विजन मिशन में उसको या फिर उसके पर्पसेस जो होते हैं बिजनेस के, उसमें उसको मेंशन करना रहेगा. सो दिस इज समथिंग अ वेरी रैंडम एग्जांपल आई गिव यू अबाउट देयर ऑब्जेक्टिव्स, बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंपनी, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मोटिव ऑफ दैट कंपनी. सो ईच एंड एवरीथिंग इज टू बी डिस्कस्ड इन दिस section of this subject. Okay, then memorandum of association and article of association, these are the two major important document for the company which is to be discussed here in this subject. then share capital, अभी companies जो होती है ना वो किसके थ्रू चलती है,
शेयर्स के थ्रू चलती है। अभी वो शेयर्स कौन से होते हैं, सब शेयर्स हम शेयर्स बोलते हैं, इन रैंडम हम लोग बोलते हैं कि ये इतने शेयर में मैंने यहाँ से शेयर खरीदे, मैंने यहाँ पे शेयर बेच दिए, आज इसका भाव बढ़ गया, है ना। वी आर ऑल फ्रॉम भावनगर, हम लोग को शेयर मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। सो अभी शेयर्स तो हम लोग ऐसे रैंडमली यूज़ कर लेते हैं वो वर्ड्स को, बट वॉट आर द टाइप्स ऑफ देयर शेयर्स। सारे शेयर्स इक्वल नहीं होते, ठीक है, एक जैसे नहीं होते, दे ऑल आर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। हर एक शेयर अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। सो उसमें भी शेयर की फिर शेयर के तो टाइप्स होते हैं, फिर शेयर कैपिटल अलग अलग होती है, ओके। उसमें ऑथराइज्ड, इश्यूड, अनइश्यूड, सब्सक्राइब्ड, अनसब्सक्राइब्ड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। नाउ शेयर मार्केटिंग, दिस शेयर कैपिटल एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स, उसके रिलेटेड चैप्टर यू विल बी हैविंग इन योर 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो। 12th स्टैंडर्ड में पार्ट आई थिंक 2 में देयर इज़ अ चैप्टर फॉर शेयर कैपिटल, ओके। सो बेसिकली ये 11th स्टैंडर्ड में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि शेयर क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू। ऑलराइट, सो आई होप द सब्जेक्ट इज़ क्लियर टू यू कि ये सब्जेक्ट बेसिकली क्या है। एज आई टोल्ड यू दैट आई विल टेल यू द करियर ऑप्शंस ऑल्सो फॉर दिस चैप्टर, फॉर दिस सब्जेक्ट आई वुड से। See, if you will consider this subject, I would say, तो CS का कोर्स आता है कंपनी सेक्रेटरी, एज आई टोल्ड यू कि उसका भी एक पूरा चैप्टर ही आएगा, उसमें इन डिटेल आई लेट यू नो कि व्हाट यू कैन डू फॉर दैट, ओके। बाकी कोर्स है, होता है, कहीं तुम्हारे रिलेटिव्स बन भी गए होंगे, यू नो। सो यू आर ऑल ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स, सो यू मस्ट हैव रिसर्च्ड समथिंग अबाउट द करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्टेस्ट ऑप्शन you have, okay, within 3-4 years you can complete this course and you can make your career and you will earn a very good amount, okay. Then commercial correspondence is like कि कभी भी बैंकिंग रिलेटेड अगर जॉब करने जा रहे हो या ऑफिस रिलेटेड भी कोई भी जॉब कर रहे हो, तो देर इज़ ऑलवेज अ चांस वेर यू नीड टू कम्युनिकेट। हर बार ना कम्युनिकेशन तो एक ऐसी चीज़ है ना, नो मैटर वेयर यू गो, okay, whether you are into business, whether you are into job, whether you are into any profession, कहीं पे भी होता है ना, तो communication is the key to success, I would say. तो communication and especially the writing communication and there are 2 type of communication, verbal and non-verbal, ठीक है। so उसमें मैं नहीं जा रही हूँ, but this is something, communication is something I would say, this commercial correspondence is part of that communication. So if you learn this, so definitely you are going to get एक trustable तुम्हारी पोस्ट हो जाएगी, because you know how to communicate, you know how to write a letter, you know how to inform how to pass the information to somebody, okay, whether it's a formal or informal, ठीक है। you know how to express yourself, you know how to express your words, so you know how to express your problem and you know how to टॉक विथ अदर्स। सो दैट इज़ बेसिकली, ऐसे भी बोल सकते हो एक बेसिक एटिकेट्स कैसे होते हैं, वैसे टाइप का ये पार्ट 1 है। सो ईच एंड एवरी थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल दो दिस सब्जेक्ट हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरीके से उसको कंसिडर करते हैं, बट एक्चुअली ये ऑप्शनल है, पर इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई गो फॉर रिलेटेड टू एग्जामिनेशन पर्पज से अगर देखा जाए तो ठीक है, ऑप्शनल है, ओके। आई अंडरस्टैंड कि मेन तो कॉमर्स में अपने 4 ही सब्जेक्ट है ना, इको, सी, अकाउंट, स्टेट, तो ये सब्जेक्ट ऑब्वियसली वी कंसिडर इट एज अ ऑप्शनल, बट इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स, बट in the form of your career, in the form of your understanding, in the form of your regular and your self development, I would say. तो सेल्फ डेवलपमेंट के तरीके से अगर ये देखोगे तो दिस इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट यू कुड एवर हैव लर्नड, ओके। सो आई होप यू आर नाउ प्रिटी अवेयर ऑफ दिस योर न्यू बुक, है ना, कि जब आते हैं ना, आई इवन इमेजिन दैट व्हेन आई हैव क्लियर्ड माई 10th स्टैंडर्ड एंड आई सॉ माई बुक्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड, इट वॉज रियली अ न्यू फीलिंग एंड each and every subject was new, okay, हर एक सब्जेक्ट में कुछ नया नया आ रहा था। So this is something 11th standard is actually everyone is the new opportunity to develop yourself, ठीक है। 10th तक जो रिज़ल्ट आया, कम आया, ज़्यादा आया,
सब भूल जाओ, अभी एक बिल्ड अ न्यू करियर, बिल्ड अ न्यू फाउंडेशन फॉर योर सेल्फ, ओके, कि एक अभी इसको नए तरीके से ही उसके साथ डील करो, सो दैट दिस इज़ समथिंग कि यहाँ से तुम्हारा करियर बिल्ड होना स्टार्ट होगा। अभी तुमने एक चॉइस लाइफ की कर ली है, कि देयर वर चॉइसेस टुवर्ड्स यू, दैट वेदर यू वांट टू गो फॉर आर्ट्स, वेदर यू वांट टू गो फॉर साइंस, वेदर यू वांट टू गो फॉर कॉमर्स, सो you have made your clear choice that no, I want to go for commerce. Okay, there will be people who will discourage you, but none of our business, okay, because you should be confident enough for what you have chosen, okay, and this is the best thing that you have chosen, so don't let yourself down, or don't ever rethink on it, okay. So let's start with chapter number 1 of part 2. हम लोग पहले part 2 स्टार्ट करेंगे, ओके, सो part 2 पे सब आ जाएंगे, इट्स ऑन alright. Part 2 is meaning and types of secretary, okay, let's read it and let's understand what it is, okay. This is part 2. Alright, so meaning and types of secretary, okay. So in this chapter basically you are going to learn about the meaning of secretary, what does it mean, okay. Then you will see the types of secretary, there are various types, okay, अलग अलग टाइप के सेक्रेटरी है इस पूरे वर्ल्ड में, ओके, जिसके अलग अलग नाम होते हैं, हालांकि that is human being only, but it plays different roles, so what roles it plays, so that is given. Then secretary of embassy, department, and everything you learn about each and every secretaries, okay. So let's start this chapter with the introduction. We will read each and every line and we will discuss it, okay. So let's read. It is given on page number 73. I hope you all have got it. So introduction says, man is the most intelligent of all the living beings in the world. He has always developed himself. In this development process, he worked more and more. At one time, he was not able to do all the work himself. At that time, he required an assistant who could work on behalf of him. The development of commerce started with the development of men. Initially, development was slow, but after industrial revolutions and due to various inventions and discoveries, the new world of commerce arose. So basically, if you talk about the human beings, अगर human beings की बात करते हैं तो human beings were the apes, monkeys थे पहले, ठीक है, early human beings की बात करें तो, okay. पहले they used to be early human beings जिनके पास कुछ भी नहीं था, right, and slowly with the time they have invented fire, they have invented wheel, and they have started farming. Slowly they were walking on the four legs, then they started standing upright, and they have developed themselves, and each and every time that human is being noticed that it is the most intelligent creation of the God, okay, and with the time it has keep on growing, हमेशा वो grow करता रहता है, ठीक है. Now if I talk about an individual human beings की power कब बढ़ती है पता है, when it is in a group, okay, when it is in the courage of the group, ठीक है, उसके पास पूरा support है दूसरे लोगों का. अकेला इंसान
it is very difficult for the alone, okay, with a single human being it is difficult to develop, okay. कितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, कितना भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन होगा, अकेले वो नहीं करता है, ओके. दे नीड ह्यूमन बींग्स, ओके. ऑल दो दे आर ह्यूमन बींग्स बट देयर वर्क विल बी डन बाय ह्यूमन बींग्स ओनली, ओके. तो जितना बड़ा, इनफैक्ट जितना बड़ा बिजनेस होगा, जितनी बड़ी बात होगी, उतने ज़्यादा लोग भी उसके साथ इन्वॉल्व रहेंगे. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ वन पर्सन टू मैनेज. तो सेक्रेटरी का कंसेप्ट ही इसलिए आया बिकॉज ह्यूमन बीइंग कैन नॉट वर्क ऑल द वर्क अलोन, ठीक है. सो दे नीड समवन with whom to whom they can trust, okay, जिसके ऊपर हम ट्रस्ट रख पाए, जिसके ऊपर हमको भरोसा हो कि यार जिसको मैं सीक्रेट बताऊंगे तो they will save my secret, they will look after my company if it is working properly or not. So basically with the time industries have started developing, especially in India if I talk about. तो पहले तो बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं था, बट बिकॉज ऑफ दैट रिवॉल्यूशंस, टाइमली रिवॉल्यूशंस आते रहे, चेंजेस आते रहे, बहुत सारे टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ, एंड स्लोली the world has changed, slowly the countries have changed, they have developed, okay. And after developing the world का जैसे डेवलप हुआ वैसे ही कॉमर्स का डेवलपमेंट हुआ, okay. क्योंकि जितना एक्सपांशन होगा ऑब्वियसली वो बिजनेस की वजह से होता है ना, जितना ज़्यादा बिजनेस बढ़ते हैं उतना ज़्यादा एक्सपांशन होता है, ठीक है. सपोज कोई भी किसी भी बात की ले लो कि जो कोई भी एक छोटे से छोटा वेंडर से ही सब स्टार्ट करते हैं, छोटी चीज़ से, ओके. स्लोली दे ग्रो, दे स्टार्ट सेलिंग इट इनटू द डिफरेंट सिटीज़. आफ्टर वही प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेट्स में जाता है, फिर वही प्रोडक्ट डिफरेंट कंट्रीज़ में जाता है, ठीक है. जैसे अलग अलग ब्रांड्स तो तुम सब लोग आई नो कि सब अच्छे से यूज़ करते होंगे. सो दिस ब्रांड्स आर व्हाट, दे आर द पार्ट ऑफ एक्सपांशन, ठीक है. कि एक हम लोग को तो कैसे क्रेज़ होता है ना कि नहीं बाहर की है, आउट ऑफ इंडिया के ट्रस्ट वर्दी है फिर तो, है ना. नाइकी के एंड वी ऑल गो लाइक दैट, पूमा, नाइकी, रिबॉक ना. सो दीज आर द ब्रांड्स विच दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सपांशन, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ वी कैन से रिवॉल्यूशन, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रोथ, ओके. तो जितना वो ग्रोथ होता है दैट मेक्स द कॉमर्स ग्रो, ओके. नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर. The modern commerce started with a sole trader businesses, ठीक है. पहले तो कैसे स्टार्ट था कि पहले बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं हुआ होती थी, या फिर जो चीज़ जहाँ पे फेमस होती थी ना वहीं से तुमको मिलेगी. अभी तो क्या हो गया है कि जो चीज़ जहाँ की फेमस है वो भी पूरे वर्ल्ड में अभी सर्क्यूलेट हो रही है, बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, बिकॉज ऑफ द ऑल ओवरऑल जो ग्रोथ हो रहा है उसकी वजह से इट इज़ वेरी ईजियर फॉर अस टू ट्रांसपोर्ट सर्टन गुड्स. जैसे अपने को अभी कोई भी बाहर की ब्रांड का चाहिए कुछ चीज़ तो हम लोग को कैसे इजीली मिल जाता है ना. हम लोग को जैसे चिप्स की आई टॉक अबाउट सो जैसे बालाजी इज़ द लोकल ब्रांड ओवर ऑफ गुजरात, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि वो गुजरात पे बन रही है तो बाहर नहीं मिलेगी, इट इज़ सर्कुलेटेड ओवर ऑल द कंट्रीज़, ठीक है. पूरे कंट्री में सर्कुलेट हो रही है. और दूसरी कंट्रीज़ की जैसे इफ आई टॉक अबाउट प्रिंगल्स, ओके, तो वो बाहर की कंट्री की है, सो विच इज़ ऑल्सो बीइंग सर्कुलेटेड इन ऑल ओवर द इंडिया. सो दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है. सो ऑल टुगेदर दिस मॉडर्न कॉमर्स स्टार्टेड विद सोल बिजनेस, देन पार्टनरशिप फर्म, देन कंपनीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी. Joint sector units came into existence. The limitation of one form becomes responsible for emergence of another form of business. As it is written that पहले क्या था, पहले एक कंसेप्ट था प्रोप्राइटरशिप का. जैसे तुम लोग अभी 11th स्टैंडर्ड में जो पढ़ोगे दैट विल बी एवरीथिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप. एक अकेला इंसान है, ओके, वो बिजनेस कर रहा है, ही इज सेलिंग द गुड्स, ही इज बाइंग द गुड्स, दैट्स अ सोल प्रोप्राइटरशिप. नाउ अभी वो एक को ऐसा लग रहा है कि नो, ओके, दैट आई एम नॉट सफिशिएंट, माई बिजनेस इज गेटिंग एक्सपांडेड, आई वुड नीड मोर हेल्प, आई वुड नीड मोर मनी टू इन्वेस्ट, ठीक है. अगर मैं इस बिज़नेस में थोड़े ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करूँगा तो शायद मेरा बिज़नेस और बढ़ सकता है, पर वो बिज़नेस में डालने के लिए पैसे भी तो चाहिए, ओके. उसके लिए
रिसोर्सेज भी तो चाहिए, उसके लिए मैन पावर भी तो चाहिए. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी नीडेड. सो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ओके, जो नेक्स्ट कंसेप्ट आया वो पार्टनरशिप फर्म का आया. ओके, इन दैट दे हैव सेड कि वन और मोर, एक या दो जने मिलके पार्टनरशिप करते हैं एंड विल गो अहेड द बिजनेस. फिर पार्टनरशिप का कंसेप्ट चला, फिर उसमें लिमिटेशंस आने लगी कि है ना, इसके लिए चलो ये पार्टनर ने तो काम किया, एक पार्टनर ने एक फ्रॉड करके वो भाग गया, फिर दूसरे पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही थी. तो एक तो दूसरा तो इनोसेंट रह गया ना, तो उसको भी उसका लॉस बेयर करना पड़ रहा था, उसमें भी लिमिटेशन आई. देन दे हैव मूव्ड अवे टू कंपनी. कंपनी इज समथिंग which is a legal entity. Okay, it doesn't have the existence in the physical form, but this is basically a document company का. ओके, कि मैं रजिस्टर कर रही हूँ. अभी जैसे वो दो पार्टनर्स से, अभी कुछ लोगों ने मिल के बोला कि चलो 4-5 जने मिल के हम लोग एक कंपनी बना देते हैं. तो कंपनी जब बनाते हैं तो जो भी कुछ चल रहा है वो किसी एक पार्टनर के नाम से कुछ नहीं चलेगा, वो सब चलेगा कंपनी के नाम से ही चलेगा. ठीक है, सपोज 5 पार्टनर थे, ABCDE. तो पहले जो भी आ रहा था, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इन लोगों के बीच की थी. तुम लोगों ने रेशियोज शायद सीखे होंगे कि सब ने अलग अलग कंट्रीब्यूट किया. इसने 20% किया, इसने 20% किया, इसने 20%, इसने 20%, और से इसने 30 किया, इसने 10 किया. ओके, सो ऑल द वे इट मे इट कीप्स ऑन चेंजिंग. सपोज तो इसमें सपोज कि अभी ये 30% वाले ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके वो भाग गया. ओके, और तो अभी ये बाकी के तो इसका लॉस तो इन सबको सफ़र करना पड़ेगा. ठीक है, सो ऑल द वे देयर वर लिमिटेशंस इनटू द पार्टनरशिप फर्म एंड आफ्टरवर्ड्स दे सेड कि नो, लेट्स फॉर्म अ कंपनी नाउ. तो कंपनी जब होगी तो सपोज कि उन्होंने ABCD है तो अल्फ़ाबेट प्राइवेट लिमिटेड कर दी. ठीक है, अल्फ़ाबेट प्राइवेट लिमिटेड करके उसको रजिस्टर करवा दिया. सो वॉट एवर डील्स आर बीइंग डन विल बी डन ऑन द नेम ऑफ अल्फ़ाबेट प्राइवेट लिमिटेड. तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसका शेयर बना वो सेल कर देंगे. मतलब कोई भी इट्स अ मोर सिक्योर्ड वन. ये ऑप्शन थोड़ा सिक्योर्ड वन रहता है. ओके, सो एक में प्रॉब्लम होती है तभी दूसरी चीज़ इन्वेंट होती है. ठीक है, सो सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉब्लम आ रही थी. ठीक है, कि एक बंदे ने पूरी इतनी अच्छा बिजनेस किया, एक्सपांड किया, अभी उसकी सडनली डेथ हो जाती है सपोज. ठीक है, तो वो उसका बिजनेस फिर ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है. दैट प्रोप्राइटरशिप एंड्स ओवर देयर. Okay, so these kind of problems arises, and that's why from proprietorship to partnership, then to company, and so on, that goes on. All right, then different ideologies emerge due to different types of inventions. Exchange of information became faster. Due to all these, the formation of commerce has changed to multinational companies. अभी पहले companies थी जो पूरे कंट्री में वर्क कर रही थी. नाउ देर आर मैनी कंपनीज, थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज विच वर्क्स इन डिफरेंट नेशंस. दैट इज़ कॉल्ड MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज. ओके, जिसका बिजनेस पूरे वर्ल्ड के साथ चल रहा है, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ चल रहा है. सो दीज कंपनीज आर कॉल्ड द मल्टीनेशनल कंपनीज. तो जैसे ही कॉमर्स का डेवलप हो रहा है वैसे ही उनके ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप हो रहा है. ओके, देन which multinational companies which has established its own position. This corporate institutions are directly or indirectly connected with human life. Okay, if you are using a toothpaste, eating potato chips, or using mobile phone, are the all products of these companies. Okay, as I gave you the example of chips. ओके, मल्टीनेशनल कंपनी है, राइट, कि प्रिंगल्स के हर एक कंट्रीज़ में उसके प्रोडक्ट्स जाते हैं. देन इफ़ यू टॉक अबाउट द टूथपेस्ट कंपनी, देर आर मल्टीनेशनल कंपनीज. ओके, नॉट जस्ट इन इंडिया, दे प्रोवाइड द सर्विसेज, दे प्रोवाइड द प्रोडक्ट्स, बट
in many of the countries they provide. Okay, now ultimately whether it is a toothpaste company or whether it is a chips company or whether it's a mobile phone company, they all need human being touch. Okay, उनको कहीं ना कहीं चाहे वो मशीनरी ही क्यों ना प्रोड्यूस करते हो, पर दे नीड ह्यूमन बीइंग टू whom they can trust. क्योंकि एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग के मशीनरीज भी होंगे, पर उसको मशीनरीज चलाने के लिए भी यू विल नीड अ पर्सन. ठीक है, सो ऑल द वे that is related to human being only. Okay, in these companies shareholders are investors and the real owners, that is shareholder, which are spread all over the country, so shareholder can't manage the company. जैसे sole proprietorship होता है तो उसके लिए वो खुद ही पैसे इन्वेस्ट करता है. ओके, तो ऑनर भी वही है. ओके, और उसका इन्वेस्टर भी वही है. ओके, उसी ने ही इन्वेस्ट किए हैं पैसे. तो जो भी लॉस है वो उसका खुद का ही है, पर्सनली हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते. नाउ व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप, तो वो पार्टनरशिप, जैसे ये पार्टनरशिप हमने देखे थे ABCD, तो या फिर दो पार्टनरशिप की अभी बात करते हैं. ओके, A एंड B पार्टनर, तो दोनों सपोज के 2-2 लाख लेके आते हैं और बोलते हैं चलो लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस. तो दोनों ने बिज़नेस स्टार्ट किया, दोनों ने 1 लाख या 2 लाख डाल के बिज़नेस स्टार्ट किया. अभी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अनलिमिटेड. ठीक है, कि जितने कुछ भी अगर लॉस होगा, कितना भी लॉस होगा, उन दोनों को उनके रेशियो के अकॉर्डिंग बांटना ही पड़ेगा. ओके, सो व्हेन इट कम्स टू कंपनीज, अभी कंपनीज में क्या होता है, जैसे इसमें भी पार्टनरशिप में भी क्या था, पार्टनर्स ही पैसे इन्वेस्ट करते हैं, पार्टनर्स ही बिजनेस करते हैं. ओके, पार्टनर्स आर द ओनर्स एंड दे आर ओनली गोइंग टू मैनेज इट. बट अभी कंपनी में क्या होता है, कंपनी के शेयर इश्यूज होते हैं. जैसे तुम लोगों ने IPOs भरते हो, सब सुना होगा, IPOs भरते हो, शेयर्स का ट्रेडिंग होता है. तो वो शेयर होल्डर्स पूरे वर्ल्ड, पूरे कंट्री में वो डिवाइडेड होते हैं. ऑल ओवर द कंट्री से लोग इन्वेस्ट करते हैं. ओके, पर उसको मैनेज कोई और करता है. कंपनी किसी और की होती है, मैनेज पैसे कोई और उसमें इन्वेस्ट करता है और मैनेज कोई उसको और करता है. जैसे तुम लोगों ने भी, कहीं लोगों ने शेयर्स खरीदे होंगे किसी कंपनी के, सो यू आर द ऑनर बेसिकली. ठीक है, बट यू आर नॉट द मैनेजर ऑफ द कंपनी. यू विल नॉट मैनेज द कंपनी, बट स्टिल यू हैव तो इसीलिए ही कंपनी दे प्रेफर, क्योंकि उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट जो अपने बिजनेस में डाल सकते हैं, दैट कम्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्रीज. लोग भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो हमको पैसे पूरे वर्ल्ड, पूरे कंट्री वाइज मिल जाते हैं, एंड मैनेज कोई और करता है. ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस. सो इन द कंपनीज शेयर होल्डर्स आर इन्वेस्टर्स एंड आर द रियल ओनर्स. जो मेन, अगर इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, who is the owner of the company? Shareholders are the owners. Okay, which spread all over the countries. So shareholders can't manage the company, right? The company is managed by board of directors, but to manage day-to-day affairs, secretary is to be appointed. अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, वो मेजर डिसीजन मेकर्स होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, पर वो एक एक दिन पूरे कंपनी में क्या चल रहा है ना, वो नहीं देखने जाते हैं. जैसे इफ आई टॉक अबाउट के टाटा इंडस्ट्रीज की बात करें, तो वो रतन टाटा जी विल नॉट गो ईच एंड एवरीवेयर के एक एक जगह पे रोज नहीं पहुंच पाएंगे. ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. सो हु mainly which person he would appoint the secretaries of that particular industries, particular companies. Okay, so to look after the day-to-day affairs of all the legal affairs, in fact I would say कि जो legal affairs होते हैं, that is being taken care by company secretary. The company is not a living person yet. It enters into contract, formulate documents, take important decisions, and law has assigned an artificial personality to the company. Okay, उसका कोई existence नहीं होता, physical existence नहीं होता, as I told you, that is solely based on the term contract. Okay, उसका contract बनता है एंड उस कॉन्ट्रैक्ट पे वो चलती है. ठीक है, आर्टिफिशियल है, उसकी कॉन्ट्रैक्ट है, वो डॉक्यूमेंटेशन पे चलती है कंपनी. ठीक है, सो लॉ इज असाइंड के कौन से रूल्स उस कंपनी में लगेंगे, दैट एवरीथिंग इज टू बी लुक आफ्टर, टू बी टेकन आफ्टर. ओके, सो दैट वर्क विल बी डन बाय द
company secretary or the secretary. The secretary is involved in these functions. The secretary's position is important in the company. In India, after independence, company law was introduced in 1956. Under this law, many amendments have been done from time to time. Ultimately, in 2030, the new company law has been introduced. Amendments in in company law up to date 29th May 2015 has included in this book. Okay, so Companies Act, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947, कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 में. फिर 1956 में, इन द ईयर 1956, देयर वाज अ लॉ कॉल्ड द कंपनी सेक्रेटरी लॉ ऑफ इंडिया. ओके, वो लॉ बना गया उस टाइम पे. In this law, everything is mentioned which is related to companies, how the companies will be formed, okay, how it will be work, how many minimum people will be needed, what kind of shares will be there, who will be managing the company, who will take the decisions of the company, okay, what is the existence of the company, okay, how it will, if it wants to grow, how would it grow, what terms, what norms it will follow, each and every detail. In fact, how it will get liquidated, वो dissolve कैसे हो सकती है, उसको liquidate कैसे करते हैं, each and everything is mentioned in the year 1956. ओके, अभी 1956 से एक्ट चल रहा था, इम्प्लीमेंट हो रहा था, बट देर वॉज सर्टन मिसफॉर्चून इन दैट कि देर वर मैनी वेज बाय विच पीपल कुड हैव द कंपनीज वर एस्केपिंग. ओके, उनकी ड्यूटीज से कंपनीज एस्केप कर रही थी. ओके, उससे छटक रही थी, ऐसे बोलते हैं ना, वो भी. तो they were trying to escape from the responsibility as a company. So what they did, they made certain amendments. Okay, उन्होंने कुछ amendments करे by which they have made a new rule or new act, we would say, that is Company Secretary Act 2013. 2013 में पूरा Companies Act change हो गया. Okay, and all the ways जहाँ से there were chances के लोग उसमें responsibility से escape हो रहे थे. From there, they have made certain rules, they have made certain amendments so that people can follow the rules of company. क्योंकि बहुत सारे जो फ्रॉड होते हैं ना, वो कंपनीज के नाम पे होते हैं. जैसे मैंने बोला कि ये लोग सारे फ्रॉड करके निकल जाएंगे, बोलेंगे कि हमने कुछ नहीं किया, अल्फ़ाबेट प्राइवेट लिमिटेड ने कर लिया था, हम लोग तो उसके सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, हम लोग की कंपनी थोड़ी है. आई एंड कंपनी आर सेपरेट लीगल एंटिटी. ये विजय माल्या वाला केस तुम लोगों ने सुना होगा, है ना. तो वो क्या बोलता है कि जो भी प्रॉब्लम है वो किंगफिशर ने किया है. आई एंड किंगफिशर आर सेपरेट लीगल एंटिटीज़, हम लोग दोनों अलग है. वो तो कंपनी के नाम पे कर्जा है, मेरे नाम पे कुछ नहीं है. Okay, so these kind of procedures were there, and afterwards the new rules, certain rules have been made, amendments आए कुछ, and by that we have changed the act, and so that we can implement the rules and regulations. So this was about the introduction of this chapter. Okay, we did the introduction of the subject and introduction of this chapter. I hope you all are understanding this. Okay, so we will be starting the SPCC subject from now. Okay, now basically as I told you, दो पार्ट में ये सब्जेक्ट है, 60 and 40 के रेशियो में. ओके, सो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी योर 60% वेटेज एंड एज वेल एज योर करियर ऑप्शन ऑल्सो. सो आई होप यू विल रीड इट. जितना आज हमने रीड किया है एक बार ग्लैंस ले लेना एंड रीड कर लेना. ओके, एंड जस्ट ट्राई टू रिवाइज एवरीथिंग. I hope you all are clear with it.